Welcome back to our channel Metacognition. Hope you all are doing well and taking care of yourself and your close ones too. As we have taken an overview of accounting in our last video, if you haven't watched, please go and check in the description below. I am leaving the link there. Okay, now let's start. Today we are going to move one step ahead in accounting. In this video, I am going to cover characteristics of accounting, objective of accounting, and types of or subfields of accounting. So, let's start with characteristics of accounting. So, as you can see on the screen, first feature of accounting is an art as well as science. Here, firstly, we have to understand the word art and science. So, what is art? Art is all about taking some techniques, using some techniques, some tools to achieve some predetermined goals. Means when we set some goals in advance and take steps to achieve them, so steps taken for achieving that predetermined objectives is a type of art. So if we'll talk according to accounting perspective, we have a lot of objectives. हमारे पास बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हमें पहले से ही स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, टूल्स का यूज करना पड़ता है. So what will be our, like, if we have a question in our mind, what will be our financial position? If we want to be number one day, so how can we achieve that position? So उस गोल को अचीव करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को हायर करने के लिए, अपनी पोजीशन को, अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए जो भी स्टेप्स, जो भी टेक्निक्स we are going to use, that is known as art. So here we can say that how accounting is an art. If we talk about science, as we have learned at so many places, that science is a thing which is totally depends on its principles, on its specified body of knowledge. It's an organized body of knowledge. So if we'll talk about in respect of accountancy, it is also a science because it also depends on some type of principle, some type of accounting standard जिनको हम अपनी upcoming videos में discuss करेंगे. So that is why here it is quoted that accounting is an art as well as science. Here you can see the next feature is recording of financial transactions only. What is means by financial transaction only? Means जिन ट्रांजेक्शन्स को, जिन इवेंट्स को हम फाइनेंशियल टर्म्स में, मींस मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे. लाइकवाइज we have purchased so many fixed asset, we have purchased table for our business enterprises, we have purchased building, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग कितने की खरीदी, the amount of building purchased, that is going to be recorded in our books. कौन सी एसेट खरीदी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बहुत बाद की बात है. बट फर्स्टली उन ट्रांजेक्शन्स को ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में हम उनको मेजर कर पाएंगे. जैसे कि अगर एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक गया, एम्प्लॉयज के बीच में बहुत लड़ाइयाँ चल रही है, एक दूसरे से उनकी नहीं बन रही है, तो वो चीज हम उसकी जो उसका हमें नुकसान तो हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, पर हम उन चीजों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट मॉनेटरी terms, that can't be measured in monetary terms. That is why here it is specified, it is fixed that हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करने वाले हैं. सो इट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन जो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता. नाउ लेट्स मूव फर्दर, दैट इज नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. अब हमने सुना, हमने पढ़ा भी कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको रिकॉर्ड भी हम मनी की टर्म्स में ही करेंगे. मीन्स each transaction is recorded in the books in terms of money only. If likewise किसी बिजनेस ने 5 ट्रक खरीदे, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उन्होंने खरीदे हैं 5 ट्रक, मशीन्स खरीदी, तो जो
वैल्यू होगी, क्वांटिटी वी विल टेक इट लेटर, क्वांटिटी को हम बाद में रखेंगे, पहले हम उसकी अमाउंट को, रुपीस को वहां पे नोट डाउन करेंगे. सो नाउ मूव फर्दर. नेक्स्ट इज क्लासिफाइड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफाइड? जब एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को हम एक जगह पर रखते हैं, लाइक होमोजेनियस नेचर की ट्रांजेक्शन को वी आर प्लेसिंग एट वन प्लेस, दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग. अब हम बिजनेस कर रहे हैं, there are different type of transaction, there are various types of events going to happen in a business. So हर ट्रांजेक्शन को अगर हम एक ही जगह पर रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा, जिस चीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं कि सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को ग्रुपिंग करते हैं. सो क्लासिफिकेशन इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट. उसको टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर बोला जाता है लेजर. लेजर में डालना, इट मींस सेपरेट अकाउंटिंग करना. सेपरेट अकाउंट्स ओपन होते हैं लेजर में, जिसमें हर एक पर्सन का, हर एक कस्टमर का, हर एक सप्लायर का, जो भी हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है, उसकी डिटेल्स हम वहां पर सेपरेटली उसके अकाउंट में लिखते हैं. इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू लाइक हमारे अकाउंट्स बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में एंड बहुत ही उससे अच्छा इम्पैक्ट भी हमारे यूजर्स पर पड़ता है कि हाँ, हर चीज अंडरस्टैंडेबल होती है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती. नाउ द नेक्स्ट इज समराइजिंग. क्लासिफिकेशन हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई ट्रांजेक्शन की, क्लासिफिकेशन हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू समराइज ऑल दिस. समराइजिंग मींस आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा. जो डेटा को हमने क्लासिफाई किया है, उस डेटा को नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट. अब इसमें क्या होता है, जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए, जो भी हम फाइनल अकाउंट्स अपने बिजनेस के बनाने वाले हैं, उन सब की बैलेंसिंग करना और उनके एट द एंड क्या नेट बैलेंस निकला है, उस चीज को वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन अ वे दैट इज नोन एज समराइजिंग. Now we have next feature of accounting, that is interpretation of results. अब हर चीज का एक पर्पस होता है. इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट उसी पर्पस के बारे में बात करता है कि अकाउंटिंग हमने की, एक एक बिजनेस के हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, उसको क्लासिफाई कर लिया और समराइज कर लिया. देन अब उस समराइज डेटा का करना क्या है? सो दिस टेल्स अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. मींस now interpreting the results means we are going to interpret the summarized data. जो हमें डेटा प्रेजेंट किया गया है या जो डेटा we are going to present to our users, उसको समझना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना. उससे हम क्या निकालेंगे कि हमारे बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी किस लेवल पर पहुंची, हमारे बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या निकल के आ रही है, और अब हमें क्या क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए, कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स है, कहाँ कहाँ कुछ कमियां आ रही है और कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक्स रही है. इन सब के बारे में हम वो चीज डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग एक तरीके से हर स्टेज पर अकाउंटिंग की कम्युनिकेटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नो पॉइंट कि हम कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं. बिकॉज अकाउंटिंग फंक्शंस के अंदर कम्युनिकेशन इसलिए होता है ताकि हम अपने यूजर्स तक, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचा सके. अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? जैसे कि जो हमारी बिजनेस से जुड़े हुए हैं इंटरनली, लाइक मैनेजमेंट जो होती है, एम्प्लॉइज जो होते हैं, उनको पूरा पता लगना चाहिए कि बिजनेस में आखिर चल क्या रहा है. और जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, मतलब कि क्रेडिटर्स हो गए, जिनसे हमने उधार पे माल लिया है, उसके बाद जो बैंक है, जो हमें कई बार हमारी हेल्प करता है लोन प्रोवाइड करने में, तो उनको भी certain type of information हमें देनी पड़ती है. So it all covers under the communicating. So now we have done with the characteristics of accounting. Move forward. Now we have objectives of accounting. हमने अकाउंटिंग की, हमारा उद्देश्य क्या है? अब हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े, तो उससे हमें एक लार्ज आइडिया मिल गया है कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं. उसी से ही कहीं ना कहीं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं.
सबसे पहली चीज, जैसे वहां पर हमने पढ़ा कि रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो दैट इज ऑल्सो कम अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. सो हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन, दैट इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन है उनको हम सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर पाए, एक तरीके से उसको हम रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि कोई भी काम हो अगर वो डिसिप्लिन नेचर में होगा दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. सो नाउ नेक्स्ट इज, इससे क्या होता है, हमारी जितने भी कोई ओमिट हो जाए एंट्री, या कोई फ्रॉड हो जाए, या कोई एरर हो जाए, उन सबको हम इजीली रिकवर करवा पाएंगे और इजीली ढूंढ पाएंगे. सो वी हैव नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. ये हमारा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो सबको लगता है कि यस, इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि पैसा आना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. सो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पूरे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल हमने क्या किया है. सो इस प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है. सो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना है. इस वजह से हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है पूरे पर्टिकुलर पीरियड में. कितनी गुड्स परचेज करी, कितनी गुड्स सेल करा, किस प्राइस पर सेल करा, उससे प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कॉस्ट निकल रही है. तो इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस. अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, ये सब चीजें हम इसमें फाइंड आउट करते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ये आप पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑब्वियसली बिजनेस की अच्छी होगी मार्केट में. अगर लॉस हुआ है तो इट मींस कहीं ना कुछ कमी रही है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड. जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने से हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है कि कितने ओमिशंस हो सकते हैं, कितने फ्रॉड हो सकते हैं, वो कम होती है. तो उसी चीज को कहीं ना कहीं हम इस फोर्थ पॉइंट से लिंक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी. जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की स्लाइड में पढ़ा है कि हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को, उनको डिटेल्स देते हैं सारी. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का. So now we are going to study about types or subfields of accounting. As you all know, management nowadays require various types of information to perform its functions more efficiently. किसी को भी कोई भी काम करने के लिए अच्छे से हर चीज का डिटेल देना बहुत जरूरी होता है. So to meet the increasing requirement of management, various specialized branches of accounting have came into existence, such as you can see on the screen. First is financial accounting. So firstly we are going to study about the financial accounting. What is all about financial accounting? So financial accounting is फाइनेंस से रिलेटेड. इस वर्ड से समझिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट आवर फाइनेंस, about our monetary terms, because accounting is totally about all money transactions. So here हम क्या देखते हैं कि कितना प्रॉफिट और लॉस वी आर गोइंग टू इनकर और अर्न ड्यूरिंग द ईयर. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही होता है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें इतना पता हो कि हमने क्या कमाया, प्रॉफिट या फिर हमें हुआ है लॉस. सो to present the financial position of the business by preparing a balance sheet, हम ये पता करवाते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस. नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग. सो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि नाम से यू कैन डिराइव द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. इसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट कॉस्ट. जब हम कोई बिजनेस करते हैं वहां पर हम कोई या तो प्रोडक्शन बनाते हैं या फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों में ही जो हमारा खर्चा, जो हमारा एक्सपेंस लगता है दैट इज नोन एज कॉस्ट. सो इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कितनी हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है, किस प्रोडक्ट में हमारी ज्यादा इनकर हो रही है और किस में हमारी कम हो रही है, जिसके बेसिस पर हम आगे जाके उसका सेल प्राइस रखते हैं, जिससे हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है. सो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना. और इट मींस, इट डजंट मीन कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट टोटल कॉस्ट. वी आर here to discuss everything about cost, like cost per unit भी कैलकुलेट होती है,
कॉस्ट पर डिपार्टमेंट भी कैलकुलेट होती है। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी हम काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारी कंपनी दो तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, तो हम दोनों प्रोडक्ट के पर डिपार्टमेंट भी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग. Now we are moving to the management accounting. So what is all about management accounting? Its main purpose is to assist the management in planning and controlling the operation of a business. पूरे बिजनेस को संभालने वाली है मैनेजमेंट. तो उसका काम क्या होता है? पूरा प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का उसे देखना है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जो असिस्ट करे, हेल्प करे प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, बिजनेस ऑपरेशन को संभालने में. सो इट यूज वेरियस टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक द अकाउंटिंग डेटा मोर यूजफुल. Now we are moving on to the next, that is tax accounting. Tax accounting, as you can see, that its main purpose is going to compute the tax liability of any business enterprise. जब हम किसी काम को करते हैं और जिससे हमारी इनकम डिराइव हो रही है, तो उसके अंदर हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग आवर सोसाइटीज resources. So we have to pay some certain amount to our government also. That is our responsibility. So that is why here we are going to compute income taxes, sale taxes on the basis of this accounting. Now we have the last field of accounting, that is social responsibility accounting. So its main purpose is to identifying, measuring and communicating the contribution of a business to the society. Because हमने सोसाइटी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया, उसके रिसोर्सेज को वी आर गोइंग टू यूज. हम अपनी सोसाइटी के वाटर, हम उनकी एयर, कई चीजों को तो बार बार हम पोल्यूट भी कर रहे हैं. जैसे कि नदियों में अपने प्रोडक्शन से कुछ डिस्क्रिशंस निकलते हैं जिसकी वजह से पोल्यूट होती है नदियां. तो उस वजह से हमें सोसाइटी की उस मेंटेनेंस को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी को देना पड़ता है. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इट्स द प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग something to the society, like providing employment to underprivileged, providing financial and manpower support for public programs and environmental contribution, product safety, product durability, customer satisfaction. These all are responsibility of social responsibility management. बिकॉज जब हम कोई प्रोडक्ट और सर्विस अपनी सोसाइटी को सर्व करते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हम प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेफ हो, जो प्रोडक्ट हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कुछ ड्यूरेबिलिटी हो, या फिर जो हम बात कह रहे हैं वो बात सच हो. क्योंकि हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. और सोसाइटी में इमेज क्रिएट होना, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी. सो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ये सब चीजें इसके अंदर आती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको आगे की वीडियो से लिंक रहना है, तो उसके लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.